Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is soils of India. Learning topics, formation of soil, types of soil, soil erosion, soil conservation. The soil is a great gift of nature to the mankind. Just imagine, without soil, we would have little to eat. A great variety of soil in India makes it possible to grow a vast variety of crops. तो नेचर के द्वारा जो हमें मिट्टी दी गई है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो क्रॉप्स ही ग्रो नहीं करेंगे, और अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे तो आप खाना भी नहीं खा पाएंगे. तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ सॉइल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. The soil forms the top layer of the earth's surface. It is formed very slowly through the breaking up of rocks. It is then spread over a wide area by wind and rainfall. The thickness of the soil is not the same at all the places. It varies according to the nature and the color of soil. तो आपकी जो अर्थ है वो अलग अलग सॉइल की लेयर से बनी हुई है. हर जगह पे आपको सेम क्वालिटी, सेम अमाउंट, सेम टेक्सचर का सॉइल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि सारे क्रॉप्स एक ही लैंड पे आप नहीं ग्रो कर सकते हैं. कहीं पे कुछ क्रॉप्स ग्रो होते हैं और कहीं पे किसी और टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं. Knowledge Corner. A centimeter thick layer of soil is the result of nearly 1000 years of hard work done by nature. 1 सेंटीमीटर जितना जो थिक सॉइल होता है वो हजारों साल जब नेचर में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते रहते हैं तब जाके 1 सेंटीमीटर जितना सॉइल आपका फॉर्म होता है. Formation of soil. Soil is formed when large rocks break into smaller pieces. These pieces further break down into sand and silt. This is carried to different places by running water and wind. All this, however, is a very slow process. It takes thousands of years to form a very thin layer of soil. तो आपके जो सॉइल की फॉर्मेशन है वो बड़े बड़े पत्थर जब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं उसके बाद आपकी सॉइल की फॉर्मेशन होती है. और ये 1 या 2 साल का काम नहीं है बल्कि हजारों साल लगते हैं नेचर में सॉइल का फॉर्मेशन होने में. इतनी सी जो आपकी पतली सी लेयर होती है सॉइल की वो हजारों साल के बाद फॉर्म होती है. The main factors in soil formation are number 1 parent rock, number 2 time, number 3 climate, number 4 organisms. तो इन 4 फैक्टर्स की मदद से आपकी सॉइल फॉर्म होती है. Types of soil. Soils vary greatly from place to place. The most fertile soil is found in the northern plains. It is called the alluvial soil. This type of soil is formed by the deposition of silt brought down from the mountains by the rivers. The crops that grow well in this soil are rice, wheat, jute and sugarcane. तो आपकी जो soil होती है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की होती है. सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी आपकी नॉर्थ पार्ट में मिलती है जिसको alluvial soil कहा जाता है, और यहाँ पे आपकी राइस, वीट, मेज ऐसे क्रॉप्स ग्रो होते हैं. The soil in the western desert is sandy. Such type of soil is also called the desert soil or the sandy soil. जो वेस्टर्न पार्ट में आपके जो जितने भी डेजर्ट वाली जगह होती हैं, रेगिस्तान वाली जगह, वहां पे जो सैंड होता है वो सैंडी टाइप का होता है आपका सॉइल. इसको डेजर्ट सॉइल या फिर सैंडी सॉइल भी कहा जाता है. Due to the acute shortage of water, nothing much grows here. Wherever water has been made available through irrigation, various crops like gram, millet, wheat, cotton, dates and other fruits can be grown. और पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स नहीं ग्रो होते हैं. जितना भी पानी इरिगेशन की वजह से सप्लाई होता है उसकी मदद से ग्राम, मिलेट, व्हीट जैसे थोड़े से क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं. In the northwestern part of the Deccan Plateau, we find the black soil. This type of soil is formed from the rocks made by lava. The lava oozes out from the cracks in the earth's crust and spreads over a large area. उसके बाद आपके जो black soil form होते हैं जो आपके लावा की वजह से होते हैं, वोल्केनो से जो लावा निकलता है वो बाद में रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उससे आपके black soil form होते हैं जो आपकी कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. When it cools down
it becomes a rock. The soil made from these rocks is good for growing cotton and sugarcane. उसके बाद जब ये लावा जम जाता है, एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक से ये मिट्टी में कन्वर्ट होता है, और यही ब्लैक सॉइल आपके कॉटन और शुगरकेन इन दोनों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. In the remaining part of the Deccan Plateau, the soil is reddish in color. This type of soil is not very fertile. This is also called the laterite soil. This soil is good for growing groundnut and millet. उसके बाद जो डेक्कन प्लेटू का बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है, वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का आपका सॉइल मिलता है जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, और यहाँ पे सिर्फ ग्राउंडनट और मिलेट जैसे क्रॉप्स ही ग्रो हो पाते हैं. The soil in the coastal plains is irrigated by rivers and canals. It is very good for raising rice and sugarcane. और यहाँ के जितने भी कोस्टल प्लेन्स के जितने भी लैंड होते हैं वो आपके कैनाल्स के थ्रू ही इरिगेट होते हैं, जो कि राइस और शुगरकेन को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. The soil on the hill slopes is very thin and poor. It is coarse and contains gravel, which are the pieces of stones. This type of soil is good for growing fruit trees. The hilly areas generally have orchids or fruit farms. आपके जो हिल स्लोप्स पे आपके जितने भी सॉइल होते हैं वो थिन और पुअर क्वालिटी के होते हैं. यहाँ पे आपको ग्रेवल्स देखने को मिलते हैं. ग्रेवल्स आपके स्टोन्स के ही छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, और यहाँ पे आप ज़्यादातर देखेंगे कि फ्रूट ट्रीज जो होते हैं वो यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं. The hill slopes are generally cut into steps and farmers do terrace farming to grow rice and maize. और हिल स्लोप्स पे आपकी जितनी भी स्लोप्स होते हैं उसको टेरेस लाइक स्टेज लाइक एरिया में काट दिया जाता है, जिसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है. On the hill slopes of the south and the northeast, crops like tea, coffee, rubber and pepper are grown in the red soil or the laterite soil. These crops are called the cash crops. The country exports these crops to other countries and earn foreign exchange. जो आपकी ऐसे स्लोप्स पे साउथ और नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स पे जितनी भी आपकी सॉइल होती है, रेड सॉइल जिसे लैटेराइट सॉइल भी कहा जाता है, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप की कैश क्रॉप्स जैसे कि टी और कॉफ़ी ग्रो होते हैं, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करे जाते हैं और हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा देते हैं. Since we have a large variety of soil, there is hardly any crop which we cannot grow. At places where the soil is not very fertile, farmers use manures like cow dung and green manures. They also use fertilizers to increase the farm production. और क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी वैरायटी ऑफ सॉइल है, यहाँ पे ऐसा कोई भी क्रॉप नहीं है जो हम ग्रो नहीं कर सकते. जहाँ पे लैंड थोड़ा कम फर्टाइल होता है वहाँ पे फार्मर्स मैन्योर्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए. Soil erosion. Soil is a very important natural resource and we must protect it so that it remains fit for farming. Rainwater and strong winds carry away the rich soil from outfields and cause soil erosion. Soil erosion is also caused by deforestation and floods. और क्योंकि अभी हमने देखा कि सॉइल की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो मिट्टी है उसे हम खराब ना करें, पल्यूट ना करें, जिससे कि हमारी सॉइल फिट रहे, हम अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो कर पाए, हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहे. जो सॉइल इरोजन होता है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से या फिर जब फ्लड्स आते हैं उसकी मदद से भी सॉइल इरोड हो सकता है. Soil conservation. Special efforts have to be made to conserve our soil and prevent soil erosion. To prevent soil erosion, we must take up the following steps. Number 1, planting grass, shrubs and plants. The roots help in binding the soil together. Number 2, step farming or terrace farming. Number 3, planting more trees. तो soil को conserve करने के ये कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रास को ग्रो करिए, फॉरेस्ट को कट मत करिए, डिफॉरेस्टेशन मत करिए, टेरेस लाइक जो फार्मिंग होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, तो आपका जो सॉइल कंजर्वेशन है वो प्रमोट होता रहेगा. Now I know soils greatly vary from place to place. The black soil in the northwest of the Deccan Plateau is good for growing cotton. The red soil in the Deccan Plateau is good for growing groundnuts and millets. The thin and coarse soil on the hill slopes is good for growing fruits. We must plant trees to prevent soil erosion. So students, इसमें हमने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के आपके सॉइल्स होते हैं. ब्लैक सॉइल आपका कॉटन को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जो रेड सॉइल होता है उसमें आपके अलग अलग टाइप के कैश क्रॉप्स
जैसे कि टी एंड कॉफी ग्रो करते हैं। सॉइल को कंजर्व किस तरीके से करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जिसकी मदद से आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको खुद से करनी है।